مسیح کے جلالی مبارک عظیم اور بزرگ نام میں آپ سب کو سلام. تشریف رکھیے. آپ کی اس عزت افزائی کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ مجھے خدا کے بندہ، خدا کے خادم پاسٹر شہزاد نے اور ان کے ساتھ ساری لیڈرشپ نے جس طرح سے قبول کیا ہے اور اجازت نامے پہ اجازت دی ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب کا بھی جو خدا کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، جو اس کے کلام کو پسند کرتے ہیں. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک ایسے معجزے کو سمجھیں گے جس سے ہم خداوند کا جلال اور اس کی قدرت دیکھ پائیں گے کہ معجزے ہوتے کیوں ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ معجزے کی وجہ کیا ہے. یعنی معجزہ جو ہوا اسے اندھا دھند قبول نہیں کر لینا. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ معجزہ کس نے کیا. جب یہ سوال پیدا ہو یا ہمارے ذہن میں آئے کہ معجزہ کس نے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ معجزہ جو ہے یہ کرنے والی قوت یا طاقت کوئی اور بھی ہے. اور بائبل میں اگر آپ اس طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خروج سے لے کر مکاشفہ تک آپ کو دکھائی دے گی کہ موسیٰ جو معجزہ کرتا تھا وہی معجزہ فرعون کے جادوگر کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے فرعون کا دل اور سخت ہو جاتا تھا. پھر اناجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بار یسوع ایک شخص، ایک جادوگر آپ کو ملے گا جو اپنے معجزوں سے حیران کیے ہوئے تھا اس ٹاپو پہ رہنے والوں کو. تو ابلیس ہمیں آغاز ہی سے اپنی قوت اور اپنی طاقت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. اور پھر آپ مکاشفہ تک آ جائیں، یعنی کہ بائبل کی آخری کتاب میں بھی آپ مخالف مسیح کو معجزے کرتے دیکھیں گے. لکھا ہے وہ آسمان سے آگ نازل کر دے گا اور پتھر کے بت میں دم پھونکے گا، روح پھونکے گا اور وہ جو پتھر ہے وہ بولے گا. اس کا بولنا اور آگ آسمان سے آنا، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا معجزہ ہے. لیکن کر کون رہے؟ کر تو ابلیس رہے. تو اس دھوکے میں نہ رہے کہ معجزے جو ہیں یہ اس کا ٹول بھی ہے، ابلیس کا ٹول. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس نے کیا. تو ابلیس کو اگر آپ دیکھیں کہ جب یسوع آزمایا جانے کے لیے، یعنی ابلیس کے ساتھ جنگ کے لیے روح یسوع کو جنگل میں لے کے گیا، تب بھی اس نے معجزے ہی کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. یعنی معجزے کی طرف دھیان کرایا کہ معجزہ چمتکار کر کے دکھا. وہ کیوں یسوع کو چمتکار معجزہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس بھی اختیار تھا. یسوع روٹیاں بنا دیتا
तो वो कुलचे बना देता, यीशु रोटियां बना देता, वो पूड़ियां बना देता, नान बना देता। कहता मैंने भी बना दिया, क्या फर्क है तुझ में और मुझ में? तो फर्क कहां पे निकला कि उसने मौजज़े की दावत दी तो यीशु ने कलाम सुनाया। यीशु ने कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। तू रोटी की बात करता है, वो रोटी खाने वाला मर जाएगा, क्योंकि तू पेट की रोटी की बात करता है। आरजी बातें हैं तुझ में, क्योंकि तू आरजी है। मैं हमेशा की जिंदगी की रोटी। आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी खुदा के मुंह से निकलने वाली बातें, उसका कलाम जो उसको नोश करेगा वो हरगिज ना मरेगा। इसका मतलब ये था। तो यीशु ने पूरा जवाब दिया था। तो आज भी इब्लीस ने मौजज़े के जरिए उम्मतों और कौमों को गिराया हुआ है। फिर उन मौजज़ों की जो मशहूरी है वो 24 घंटे चलाते हैं। एक तो वो धोखा होता है, वो सच्चा मौजज़ा नहीं होता। इस पे तो मैं माजरत भी नहीं करूंगा। लोग कहते हैं माजरत करता हूं मैं, लेकिन उनकी मोहब्बत अपनी जगह। लेकिन मैं कुव्वत के साथ कह रहा हूं, अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, बाइबल की ट्रांसपेरेंसी में कह रहा हूं कि एक तो वो झूठे मौजज़े हैं और दूसरा वो 24 घंटे इसलिए चलाए जाते हैं कि डिवर्जन लग जाए, हम समझ ही ना पाए। तो 4 सवाल एक मौजज़े के लिए बड़े जरूरी हैं। किसने किया, क्यों किया, और तीसरा किस पर किया। यानी जिस पे हुआ आप उसे जानते हैं? नहीं जानते तो वो झूठा हो सकता है। उसके झूठे होने के चांस 90% हो सकते हैं, 99% हो सकते हैं। और जो टीवी के मौजज़े हैं इनके चांस 100% हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? कि खुदा कैमरों का मुताज नहीं है, खुदा टेक्नोलॉजी का मुताज नहीं है। खुदा अगर मुताज हो तो कैसा खुदा है ये? तो यीशु ने तो जब मौजज़े किए, उन मौजज़ों में जब हम फर्क ढूंढेंगे, हर मौजज़े में एक आपको तालीम मिलेगी, उसकी बैकग्राउंड मिलेगी। उसने बेशुमार मौजज़े किए, लेकिन 35-36 मौजज़े जो कलम बंद हुए, उनके पीछे एक खास वजह मौजूद है। क्यों वो लिखे गए, वो वजह मौजूद है। तो जब आप उस वजह तक पहुंचेंगे तो हर मौजज़ा एक वजह के साथ आपको मिलेगा। तो जिस पे हो रहा है उसको आप जानते नहीं है, लेकिन बाइबल में जो मौजज़ा हो रहा है उसको सब जानते हैं। जो हैकल के बाहर लंगड़ा था, उसके बारे में लिखा है कि सब उसे जानते थे, हर कोई उससे वाकिफ था। तो आप तो वाकिफ नहीं होते, मैं वाकिफ नहीं हूं टीवी के मौजज़ों से। तो ना तो खुदा मुताज है टीवी का, तो ना वो एडवर्टाइजमेंट चाहता है। क्योंकि जब यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया तो लिखा है ये कोई ना जाने, यानी मौजज़े की एडवर्टाइज ना करना। और उससे पहले, हालांकि वो सरदार की बेटी थी, लिखा है सबको बाहर निकाल दिया। तो अगर वो मौजज़े के जरिए एडवर्टाइज चाहता था या मौजज़ा के जरिए वो तरक्की पाना चाहता था या मशहूर होना चाहता था, तो फिर वो बाहर ना निकालता, सबको निकाल दिया। और सिर्फ लड़की के मां बाप को और अपने इनर सर्कल के चंद शागिर्दों को साथ लेके गया। और जब मौजज़ा हो गया, उनसे कहा ताकीदन हुक्मन कि ये कोई ना जाने। किस किस तो समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है ना? तो फिर इसका मतलब है, बड़ा जरूरी है समझना कि क्यों किया, किसने किया, किस पर किया और कैसे किया। चिले वाला तो नहीं है, जादूगर तो नहीं है। तो यीशु का मौजज़ा आपको
ایک ایسا معجزہ جس کے بارے میں میں پوری تحقیق کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ، اس کا 7واں باب اور 11 آیت سے یہاں پہ یوں مرقوم ہے، تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، یعنی یہ خاتون ایک تو خاوند نہیں ہے اور بیٹا وہ بھی رحلت کر گیا، مر گیا۔ اب کیا بری حالت ہے یہ، اور لکھا ہے وہ بیوہ تھی اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ کون کہتا ہے؟ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور یہ جو لفظ ہے جس کا ترجمہ یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ یسوع کہتا ہے میں، یہ وہی لفظ یہاں پہ استعمال ہوا عبرانی کا، جب موسیٰ نے کہا کہ وہ میرا یقین نہ کریں گے، وہ پوچھیں گے کہ تیرے خدا کا نام کیا ہے، تو خدا نے کہا تھا موسیٰ کہہ دینا میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ تو یسوع یہاں پر وہی استعمال کر رہا ہے کہ یعنی وہ اپنی آئی ڈی دے رہا تھا، وہ دکھا رہا تھا کہ میں کون ہوں اس معجزے میں۔ Who I am، میں کون ہوں وہ اس معجزے میں بتا رہا تھا، اور یہ معجزہ ہرگز عام معجزہ نہیں تھا۔ اس معجزے کی جو روٹ ہے یہ بڑی گہری ہے۔ یہ بیٹا آپ پلیز اٹریکٹ ہو، اس طرح نہیں کریں۔ یہ بچہ خدا سے زندگی دے آپ کے پاس ہے تو ایک دن کے لیے دے دینا اسے، باجی کو کھیلے گی اس سے۔ برا کرم توجہ کریں، تو یہ معجزہ نہیں تھا، اس معجزے کے پیچھے ایک بڑی وجہ موجود تھی۔ تو یہاں پر اس معجزے کے حوالے سے ایک بڑے عظیم خدا کے خادم رون چارلز، اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ملیں گے، رون چارلز اس معجزے کی تحقیق کرتے ہوئے اور تحقیق کرنے کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اٹیلین ہسٹری میں اس معجزے کو مدر آف میریکل کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا معجزہ۔ تو وہ جب اٹیلین ہسٹری کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ انہیں ملا کہ یہ معجزہ جو ہے، جو بیوہ کے بیٹے کے زندہ ہونے کا معجزہ ہے، یہ مدر آف میریکل کہتی ہے اٹیلین ہسٹری، تو کیسے ہے یہ سب سے بڑا معجزہ؟ تو معجزہ تو جو لازر کا ہے 4 دن کے مردے کا، وہ بڑا ہے۔ اور بائبل میں تو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی بہن کہتی ہے خداوند وہ تو اب گل سڑ گیا ہے، اب تو امید نہیں ہے، اسے 4 دن ہو گئے، 3 دن تک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن 4تھا دن جب شروع ہو جائے تو پھر ہمارا عقیدہ، ہماری امید ختم ہو جاتی ہے، اب صرف خدا ہی زندہ کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی یسوع کے 4 دن کے بعد اسے 4تھے دن زندہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی آئی ڈی دینا چاہتا تھا کہ میں خدا میں سے آیا اور خدا میں سے نکلا ہوں، میں خدا میں سے خدا ہوں۔ تو وہ کچھ معجزے یسوع نے جو کیے وہ خدا میں سے آئے اور خدا میں سے نکلے ثابت کرنے کے ہیں، یعنی اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا میں سے آیا، خدا ہوں۔ تو کچھ معجزے اس نے کیے خدا ثابت ہونے کے، کچھ معجزے ایمانداروں نے اپنے ایمان سے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک وائس لیڈی جو 12 برس کی بیمار تھی، اس کو دیکھتے ہیں
तो उसने जाकर अपना मौजज़ा खुद लिया है। वो मौजज़ा जो है वो जाती है, पीछे से जाके पोशाक का पल्लू छूती है, उसका कोना, और अपनी शिफा लेती है। लिखा है क्योंकि वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं पोशाक का किनारा छू गई तो मैं अपनी शिफा ले लूंगी, मैं अपना मौजज़ा ले लूंगी। उसके अंदर ये ईमान था और वो इसी अमल को करने में उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी। क्योंकि यहूदी कल्चर में औरत मर्दों की भीड़ में नहीं आ सकती, उसको यहूदी जो शरीयत के माहिर कानूनदान हैं वो कत्ल की सजा, संसार होने की सजा दे सकते हैं। यहां तक कि वो औरत की आवाज को नहीं पसंद करते थे कि मजमा में बड़ी भीड़ में औरत की आवाज आए। अब ये तो भीड़ में उतरी हुई है, ये कानून तोड़ते हुए, इस खौफ के बुत को गिराते हुए कि मैं मारी जाऊंगी, ये यीशु तक पहुंची है। सिर्फ ईमान की कुदरत से भरी, ईमान की कुव्वत से भरी, ईमान की मोहब्बत से भरी। और जब जाके छूती है तो यीशु कहता है किसने मुझे छुआ? मौजज़ा भी हो गया है। लिखा है जब उसने छुआ तो आगे लिखा है कि उसने अपने बदन में महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूं, शिफा मुझे मिल गई है। इसके बाद आगे लिखा है यीशु ने अपने बदन में महसूस किया कि कुव्वत मुझसे निकली है, मौजज़ा हो चुका। मौजज़ा लेने वाले ने ले लिया, ऐसे जैसे आपकी जेब में से कोई पैसे निकाल ले, वो जेब कतरे मिल जाते हैं ना, तो ये मौजज़ा कतरी है। इसलिए अपना मौजज़ा काट लिया यीशु से। तो यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ कि कुव्वत मुझ में से निकली है। वो डरती डराती फिर सामने आई, दोबारा छुपी इसलिए थी कि वो बचना भी चाहती थी कि मुझे संसार ना किया जाए, छुपी इसलिए थी। फिर सामने आ गई कि जो शाफी है, जिससे शिफा निकलती है, जिससे मौजज़े निकलते हैं, जिस पर मेरा ईमान है, वो मुझे बुलाता है। फिर सामने आ गई, फिर जिंदगी की परवाह नहीं की। तो यीशु ने उसे कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो मौजज़ा यहां पे यीशु करता दिखाई नहीं दे रहा। यीशु फिर कहता है और इस बीमारी से बची रह, यानी जो उसने अमल किया था उस पे स्टैंप लगाता दिखाई दे रहा है कि अब ये बीमारी तुझे दोबारा ना छुए, यानी परमानेंट मुस्तफीद रहे तू, परमानेंट शिफा याब रहे तू, ये बीमारी तुझे अब दोबारा ना लगे। तो ये कैसा ईमान है? और लिखा है बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। तो बहुत से मौजज़े बाइबल में ईमान की ताकत से लिए गए हैं। एक अंधे का मौजज़ा वो भी ऐसे ही है। तो कुछ मौजज़े, मौजज़ात की हर मौजज़े की वजह और है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो फर्क है। तो इसको एक ही डब्बे में डाल के, वो जामुन नहीं बेचने आते, वो डब्बे में डाल के घुमाते हैं फिर दे देते हैं कागज पे डाल के। तो ये जो टीवी है ये वो डब्बा है, सारे मौजज़ों को इकट्ठा करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। खुदा का कलाम किसी डब्बे में नहीं आ सकता। खुदा का कलाम किसी टीवी का मोहताज नहीं है। खुदा का कलाम तो कायनातों को तख्लीक करता है। खुदा का कलाम तो हमें संभालता है। आइए देखते हैं अब ये जो मौजज़ा है, जिसको खुदा का कलीमा, खुदा का बेटा, खुदा का कद्दूस, खुदा की जात का नक्श, खुदा की जात में से जात, उसकी बर्थ, अल्फा ओमेगा, शुरू और आखिर, इब्तदा और इंतहा, कलमा खुदा, ये मौजज़ा क्रिएट कर रहा है, ये मौजज़ा तैयार कर रहा है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है कि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। इसकी वजह क्या है? क्यों इटालियन हिस्ट्री में लिखा है कि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है? ये लाजर से भी बड़ा मौजज़ा है। क्या ये 5 दिन का मुर्दा था? क्या ये 6 दिन का मुर्दा था? क्या ये 10 दिन का मुर्दा था? तो फिर रॉन चार्ल्स ने तहकीक शुरू की
کہ یہ تو بڑی بات ہے، اور کوئی شخص نہیں کہہ رہا، کوئی عام گروپ نہیں کہہ رہا، اٹیلین ہسٹری کہہ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ آپ سرچ کریں اٹیلین ہسٹری، تو وہاں پہ بیوہ کے بیٹے کا معجزہ مدر آف میریکل لکھا ہوا ہے۔ تو جب تحقیق شروع ہوئی، اور ران چارلس آرکیالوجسٹ ہے، ایک بندے کا کام ہی ایسا ہے، آرکیالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ آثار قدیمہ کی تحقیق کرتے ہیں، بندے کا کام ہی وہ ہے تحقیق کرنا، اور وہ کام بھی مل گیا، بائبل کا کام مل گیا، اور پاسٹر بھی ہیں۔ تو خدا کا خادم اس جگہ پہنچا تحقیق کرنے کے لیے کہ بھئی یہ مدر آف میریکل کیسے ہے؟ بائبل تو بتاتی ہے لازر کا معجزہ بھرا ہے۔ تو پہنچ گئے، تحقیق شروع ہو گئی، پتا چلا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو لڑکا ہے بیوہ کا، یہ فوجی تھا۔ تو پہنچے فوج میں، تحقیق پھر شروع ہو گئی کہ اس کی مدر نیم بتایا جائے، اس کا فادر نیم بتایا جائے، اور میں اس پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ مل گیا لنک، وہاں سے فوج سے معلومات کلیکٹ کر لی۔ ان معلومات میں یہ تھا کہ اس کا باپ تو کافی عرصہ پہلے مر گیا، لیکن اس کی ماں، اس کا تعلق مصر سے ہے، اس کی ماں مصری تھی۔ تو پھر ران چارلس پہنچا مصر، اور اپنی تحقیقات کو پورا کرنے کے لیے کمانڈرز تک پہنچا، لیڈرز تک پہنچا فوج کے۔ تو پوچھا گیا کہ جب جنازہ ہوا تھا، تو فوج کی آج بھی ترتیب وہی ہے کہ جب کوئی فوجی مرے تو بڑے آفیسر جاتے ہیں اس کو آنر دینے کے لیے، اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں جو فوجی ہے، جو ڈیوٹی پہ مرا ہے۔ تو یہ ڈیوٹی پہ مرا تھا۔ تو پتا چلا کہ فوج کے لیڈرز نے، بڑے آفیسرز نے اس خاتون سے، کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا، درد بڑا تھا، کرب بڑا تھا، تکلیف بڑی تھی، اس سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، کس طرح عزت دیں تیرے بیٹے کی تدفین کو کہ تجھے تسلی ملے۔ تو اس خاتون نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو شاہی تدفین دی جائے، جس طرح مصری لوگ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق مصر سے تھا۔ تو مصر کی جو تدفین ہے، شاہی تدفین، اس نے خواہش کی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، کیسے مانگتی پیسہ، کیسے مانگتی بنگلہ، کیسے مانگتی دولت۔ تو ماں تو پھر تسلی کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو شاہی تدفین ملے، کیونکہ میں مصر سے ہوں، اور مصر کی جو تدفین ہے شاہی، اس طرح سے میرے بیٹے کا جنازہ کیا جائے کہ یہ شاہانہ انداز سے اس کا جنازہ پڑھا جائے اور کیا جائے۔ فوج کے لیے تو اس وقت بھی مشکل نہیں تھا، آج بھی مشکل نہیں ہے کسی رسم کو کرنا۔ تو پھر شاہی تدفین جو ہے اس کا طریقہ کار ڈھونڈا گیا جو مصر کی تھی، وہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ تو چلے میرے ساتھ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے پیدائش۔ پیدائش اس کا 49 باب اور اس کی آیت ہے 33۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا۔ اب یہاں پہ بھی ایک مردے کی بات ہونے لگی ہے، ایک مرے ہوئے شخص کی، لیکن بڑا شخص ہے، یعقوب ہے، ٹھیک ہے، عام واقعہ بھی نہیں ہے، یہ ایک آئیکن ہے، یہ یعقوب ایک نبی ہے، یہ ایک بڑی شخصیت ہے، وہ مرنے لگا ہے تو وصیت کر رہا ہے مرنے سے پہلے۔ اور وصیت کیا ہے؟ جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے، کیونکہ جان نکل رہی ہے، بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے، اب یوسف تو غلام ہونے کے لیے بیچا گیا تھا۔ انسانوں کے منصوبے اور ہوتے ہیں، لیکن
खुदा के मंसूबे और होते हैं। हमारे मंसूबे बुरे होते हैं, लेकिन उन बुरे मंसूबों में खुदा भलाई पैदा कर देता है। बाज़ औक़ात इब्लीस इस ख्वाहिश में चर्च पर हमलावर होता है कि मैं चर्च तोड़ दूंगा, चर्च बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बड़ी मुंह की खानी पड़ती है उसे। जो मेंबर, जो लीडर टूटते हैं, वो जहां जाते हैं, अगर वो 20 हैं, अगर 20 लोग चर्च से निकले तो वो 20 जगह पे चर्च बनाने का काम करते हैं। यानी वो जहां जाएंगे वहां पे चर्च बनाएंगे। तो इब्लीस को शिकस्त होती है। खुदा बुरे मंसूबों को भलाई में बदल देता है। तो जब आपका चर्च टूटे और उस चर्च के ईमानदार किसी जगह पे जाकर चर्च कायम करें, तो शुक्रगुजारी से भर जाएं कि आपका चर्च बांझ नहीं है, आपका चर्च सूखा हुआ नहीं है। आपके चर्च से खुदा ब्रांचेस पैदा कर रहा है और चर्च निकाल रहा है और कलीसियाएं पैदा कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, ये खौफ की बात नहीं है। इब्लीस ने लालच इन भाइयों में डाला और उन्होंने बेच दिया, उसे गुलाम कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे सरफराज कर दिया और वजीर आजम बना दिया। अब ये वजीर आजम है और शाही फिरका बन चुका है, शाही खानदान का हिस्सा बन चुका है, वजीर आजम से बड़ी पोस्ट किया है। तो वहां पर अपने बाप की मैयत के साथ तबीबों को साथ लेके गया है, क्योंकि वसीयत थी कि मुझे वो जगह दफनाना जो मैं बता रहा हूं। तो वहां पे ले जाने के लिए उस लाश को जो याकूब की थी, तबीब, नौकर, फिजिशियन साथ लेके गया है, क्योंकि जरूरत थी जो शाही तदफीन है उसके तरीकेकार में। जी आगे देखें, तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया, सो तबीबों ने इस्राएल की लाश में खुशबू भरी। अब जो शाही तदफीन थी वो असल में उनका जो तरीकेकार था, वो जब उनका कोई शख्स मरता था, कोई शाही मेंबर, तो जो तबीब थे उस लाश में से उसका जिस तरह पोस्टमार्टम होता है, चाक करके काट के सीना, उसके अंदर से ऑर्गन्स निकाल देते हैं, मेदा, अंतड़ियां, जो चीजें बदबू फैलाती हैं या गलने सड़ने का काम करती हैं, वो निकाल के उसके अंदर मसाला जात भरते हैं, मेडिसिन भरते हैं, खुशबू भरते हैं। तो खुशबू भरने के अमल को पूरा करके वो शाही मुर्दे को दफन करते थे। तो अब अमल जारी हुआ है, तो लिखा है और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। जो शाही तदफीन है मिस्र की, ये 40 दिन तक खुशबू भरने का अमल, यानी एक परत भर दी, उसके सूखने का टाइम 24 घंटे, फिर अगले दिन अगली परत भरनी है, फिर अगले दिन अगली परत भरनी है। और इसमें क्या होता था कि जितने मेहमान हैं बादशाहों के, शाही लोगों के, चूंकि मुरासिम दूर दराज के मुमालिक में भी होते हैं, तो वो लोग पहुंच सके, क्योंकि उस वक्त तो एयरप्लेन नहीं था, उस वक्त तो मर्सिडीज या प्राडो या क्रूजर नहीं थी, उस वक्त ऊंट, घोड़े, इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती थी। तो उसका फायदा यह भी होता था कि तदफीन से पहले जब खुशबू का अमल जारी होता तो 40 दिन लोगों के पास होते थे कि वो आकर मैयत पर बैठकर अफसोस का इजहार कर सके और उस जनाजे में शरीक हो सके। तो जो मुलाकाती होते थे, जिन्होंने आकर उस जनाजे में शिरकत करनी होती थी, बहुत से लोगों ने, तो वो फिर उस फूड़ी में उस मैयत के लिए उन्हें मौका मिल जाता था। 40 दिन तक ये अमल जारी रहता था। आते थे, अफसोस करके चले जाते थे, आते थे, अफसोस करके चले जाते थे, और ये अमल 40 दिन खुशबू भरने का और मातम और अफसोस जारी रहता था। तो जो 40वां हमारे इलाकों में होता है वो भी यहीं से है, ये मिस्री रस्म है। और अगर कोई 40वां करे, सवाल किया जाता है जी 40वां जो है ये करना जायज है कि नहीं।
तो मैंने तो हमेशा ये जवाब दिया है कि 40वां जो है अगर आप इसलिए करते हैं कि सारे अजीजों अकारब इकट्ठे हो और आप आंसू बहाएं, मातम करें, तो ये गलत है, नाजायज है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 40वां इसलिए किया जा रहा है कि आप सारे मिलकर शुक्रगुजारी करें, इबादत करें, यसु को जलाल दें, खुदा के मंसूबे की इज्जत करें और कलाम सुने, तो फिर 40वां क्या, फिर 20वां भी करो, फिर 10वां भी करो, फिर 30वां भी करो, 50वां भी करो, चलते ही रहो। हर 10 दिन के बाद ये रस्म करते जाओ, फिर नहीं कोई मसला। अगर कलाम का मौका मिलता है, अगर इबादत का मौका मिलता है, अगर आप अपने अजीज के लिए अपने रुपए पैसे को कलाम के लिए इस्तेमाल करके सेलिब्रेट करते हैं या लोगों को शरीक करते हैं और मौत के खिलाफ बाइबल की मुनादी लोगों तक पहुंचाते हैं, ये बड़ी बात है। तो यहां पर 40 दिन पूरे हुए क्योंकि इतने ही दिन लगते थे। तो ये जो बेवा का बेटा है, इसके लिए मां की ये डिमांड है कि मेरे बेटे को मिस्री तदफीन दी जाए। फौज के लिए तो ये मुश्किल नहीं था, तो ये 40 दिन का मुर्दा था। इसके सारे ऑर्गन्स जो निकाले जाते थे वो एक पीतल के मर्तबान में पैक करके रख दिए जाते थे। मैयत के साथ जनाजे पर उस चारपाई पर एक पीतल का मर्तबान सील पड़ा होता था और मुर्दा पड़ा होता था। ये शाही आज भी जो ममीज दरियाफ्त होती हैं ये वही मुर्दे हैं। तो मिलिया जी ममीज कितनी देर पुरानी है? 3000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी। वो मम्मी जो है उसकी हालत उस खुशबूदार और मसाला यानी कि दवाइयों की वजह से उसकी जो बॉडी है वो महफूज मिलती है। एक यूट्यूब की वो यूफोन की मशहूरी आया करती थी, उसमें वो उसके अंदर से एक मम्मी उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, देखिए आपने। बहरहाल ये मम्मी जो हैं वो मिस्री तदफीन के मुर्दे हैं जो आज भी दरियाफ्त होते हैं। तो ये जो मुर्दा है, जो बेवा का बेटा है, इसके ऑर्गन्स निकाले हुए हैं और इन ऑर्गन्स को पीतल के मर्तबान में सील करके उस मुर्दे के साथ, बेवा के बेटे के साथ रखा हुआ है। और ये जनाजा जो है इसलिए भी बड़ा है कि 40 दिन का ये मुर्दा है, पूरा शहर उमड़ आया है, फौज इसमें शरीक है और ये बड़ा जनाजा है। और हिस्ट्री बताती है, बाइबल टीचर्स बताते हैं, ज्यूज स्कॉलर्स बताते हैं कि इस जनाजे में जो सूबेदार था जिसने कहा था खुदावंद मेरा घर इस लायक नहीं, मेरी छत इस लायक नहीं कि तू उसके नीचे आए, तू दूर इसे कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। वो जो सूबेदार था वो भी इसमें शरीक था। तो यसु को दावत दी गई थी कि वो इस जनाजे में शरीक हो। तो यसु कैसे शरीक हो? जनाजे में यही एक शख्सियत है जो शरीक नहीं हुई। यसु ही है जिसने कोई जनाजा नहीं पढ़ा। इसने मातम को नाच में बदला है, इसने मौत को जिंदगी में बदला है, इसने मैयत को ऑर्डर किया है। अब जब ये रास्ते में आया तो उनका कानून है, ज्यूज का, स्कॉलर्स बताते हैं कि जो हैकली कानून है, जो शरीयत का कानून है कि जब चारपाई उठा ली गई तो वो कब्र के सामने बस उतरे। अब सामने यसु आया है रास्ते में, तो हुक्म हुआ है रुकने का, तो फौरन से इजाजत हुई है कि जनाजा रोक दिया जाए और उतार दिया जाए, क्योंकि वो इस चक्कर में पड़ गए कि ये कहता है मैं खुदा में से खुदा हूं, मैं खुदा में से निकला और खुदा में से आया हूं। तो ये तो 40 दिन का मुर्दा है, इसके तो ऑर्गन्स निकले हुए हैं, दिल इसका निकला हुआ है, फेफड़े इसके बाहर हैं, अंतड़ियां इसकी बाहर हैं और वो मर्तबान में पैक हैं और 40 दिन इसको हो चुके, ये मरा हुआ है, ये तो जी उठ सकता ही नहीं, आज ये मौत से हार जाएगा। तो जो फकीर और फरीसी थे उनके अंदर ये ख्याल चल रहे थे कि आज इस धोखेबाज की जो धोखा है वो सामने आ जाएगा, आज
इस मौत के सामने इसे झुकना पड़ेगा। आज इस मौत को ये नहीं रोक सकेगा, मौत का कब्जा आज ये नहीं तोड़ सकेगा। लेकिन वो वाकिफ नहीं थे ये कौन है। वो मुखालफत तो कर रहे थे, वहां पे कौन है? ये वही है जो मिट्टी का पुतला बनाता है और उसमें दम फूंकता है और वो जीती जान होता है। पुतला वहां पे नहीं लिखा कि ऑर्गन्स बने, दिल बना, अंतड़ियां बनी, फेफड़े बने, नहीं लिखा। जब दम फूंका ये सारी चीजें तख्लीक हो गई। और यहाँ पे वो है। अब जब उसने कहा मैं तुझसे कहता हूं, यानी वो जो अब अज़ल से है, जो अबद से है, वो जिसने मिट्टी का पुतला बनाया है, मैं तुझसे कहता हूं, वही खुदा जो मूसा का खुदा है, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, कह देना। अब ये जो मैं जो हूं सो हूं वो कह रहा है मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो जैसे ही यीशु के लफ्ज, यीशु के सांस लफ्जों की गिरा में उसके कानों में पड़े, वो 40 दिन के डेड कान उन्होंने अमल शुरू किया है, उन्होंने काम शुरू किया है और उस हुक्म की ताबे फरमानी की है और वो मुर्दा सीधा खड़ा हो गया है, जिंदा हो गया। तो ये जो मौजज़ा है, इसके पीछे वजह ये है उसके करने की कि यीशु कहता था कि मैं खुदा में से आया और खुदा में से निकला हूं, यानी वो खुदा होने का दावा करता था। तो जो दावा करता है उसको सबूत देना पड़ता है। अगर इस बिल्डिंग का कोई दावा कर दे कि मैं इसका मालिक हूं, तो सबूत उसी को देना पड़ेगा जिसने दावा किया है। अब यीशु का दावा है कि मैं खुदा में से खुदा हूं, तो सबूत भी तो वो दे। मुझे साबित करने की क्या जरूरत है, या आपको साबित करने की क्या जरूरत है? किसी पोप को, किसी बिशप को, किसी फादर को, किसी पादरी को ये दावा साबित करने की जरूरत नहीं है। ये वही साबित करे जिसका दावा है, और उसने ये दावा साबित किया है कि वो खुदा में से खुदा है। खुदा के पास ये कुदरत है कि वो मिट्टी को जीती जान करे, तो खुदा के पास ये कुदरत है कि वो 40 दिन के मुर्दे को जीती जान करे। इसके बावजूद कि ये 40 दिन का मुर्दा है, मेरी बाइबल अंडरस्टैंडिंग इसको बड़ा मौजज़ा नहीं मानती। अगर ये 400 साल का मुर्दा भी होता तो मेरा ख्याल है बाइबल की रूह से अगर देखा जाए तो ये बड़ा मौजज़ा नहीं है। बड़ा मौजज़ा क्या है? बड़ा मौजज़ा ये इसलिए नहीं है कि वो 40 दिन का मुर्दा है, फिर मर गया। मर तो फिर गया ना, अब तो नहीं वो अलाइव। याईर की बेटी है, फिर मर गई, अलाइव नहीं है, अब मिल नहीं सकते। तो जिंदगी मिली दोबारा, फिर मर गए। तो जिंदगी के बारे में बाइबल कहती है ये घास पर उगने वाले फूल की सी हैसियत है हमारी जिंदगी की। सुबह है शाम को नहीं, ये घास की मानिद है, ये बालिश भर की है, ये ख्याल की मानिद है, ये बहारात की मानिद है, ये साया की तरह है। साया दोपहर में होता है, शाम में नहीं होता। ख्याल छोटा सा ख्याल है, ये सोचा खत्म हो गया। मैंने सोचा मैं अमेरिका जाऊंगा, ठीक है सोच लिया, कितना को टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम। इतनी को जिंदगी है हमारी। बाइबल फरमाती है ये हाथ भर की है, बाइबल फरमाती है ये बुलबुले की तरह की है, से बेसबात है ये। यानी एक बुलबुला फटा, फिर बना दिया खुदा ने, खुदा के बेटे ने, तो वो फिर फट गया। तो कितना को टाइम लगता है एक बुलबुले को फटने में? तो जितना बुलबुले को टाइम लगता है उतना को टाइम हमारी जिंदगी है। तो कितना को बड़ा मौजज़ा है ये? छोटा ही है ना। फिर मैयर करे ना, बहरात ये उड़ रहे हैं, वो गायब हो गए। उबाले किसी चीज को तो बहरात उड़ते हैं ना, दिखते हैं, गायब हो जाते हैं, थोड़े से टाइम में आंखों से ओझल हो जाते हैं। इतनी को जिंदगी है। तो इतनी को जिंदगी दोबारा मिली है ना इनको, फिर खत्म। चले बड़ा मौजज़ा देखते हैं, मेरे साथ देखिए
लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारका उसका 15 बाब और 7 आयत। उसका 15 बाब और 7 आयत यहां पे यूं लिखा है, यीशु कह रहे मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। बेवा का बेटा जिंदा हुआ, कहीं नहीं लिखा खुशी हुई। लाजर को जिंदा किया गया, नहीं आसमान पे खुशी लिखा। क्यों नहीं खुशी हुई? क्योंकि आसमान की कलीसिया को पता है कि ये जो जिंदा किया गया ये फिर मर जाएगा। ये जमीन की कलीसिया को बेवकूफ बनाता है डेविल, इब्लीस। लेकिन खुदा का पाकरू अपने लोगों के जरिए कलीसिया को दाना करता है, हिकमत देता है। तो यहां पर लिखा है एक गुनहगार जो तौबा की हाजत रखता है और 99 रास्तबाज जो तौबा की हाजत नहीं रखते। ये रास्तबाज कौन है? रास्तबाज की मानी है सीधी राह पे जाने वाला। यानी सीधी राह क्या है? आप नेक अमल करते हैं, आप बेवाओं को खाना खिलाते हैं, आप बड़े खुदा तरस हैं, आप चंदे देते हैं, हदिये देते हैं, संडे सर्विस कोई मिस नहीं करते, बड़े अच्छे काम, गुनाह से दूर रहने की कोशिश करते हैं। रह नहीं पाते, कोशिश करते हैं। तो आपके अच्छे काम, आपकी रास्तबाजी के काम वहां पे लिखा है 99 है, लेकिन तौबा की हाजत नहीं रखते। तौबा के जो दर्जे हैं उनमें से नहीं गुजरते। तौबा के दर्जे जो हैं, नंबर 1 एहसास से गुनाह, कि हमारे अंदर ये एहसास उतरे कि हम गुनहगार हैं। नंबर 2 इकरारे गुनाह, कि हम इकरार करें खुदा के हुजूर कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, खुदावंद मुझसे ये गलती हुई, ये खता हुई, ये गुनाह हुआ। इकरारे गुनाह। और नंबर 3 तर्के गुनाह, कि हम ये भी ऐलान करें कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, खुदावंद मुझ पे रहम कर दे, मुझ पे करम कर दे, मुझ पे फजल कर दे। और चौथा निजात का दरवाजा खुल जाता है। 3 स्टेप आपके और चौथा काम खुदा का, वो दरवाजा खोल देगा निजात का, वो रिहाई दे देगा आपको, मखलसी दे देगा, छुटकारा दे देगा, आपके गुनाहों की मुआफी के लिए अपने बेटे के लहू से आपको धो देगा। वो लहू जो कीमती है, वो लहू जो बेऐब है, वो लहू जो किरमजी गुनाहों को धो देता है, वो लहू जिसके बारे में अक्सर बदरू गिरफ्ता केस आए। तो मैं ऑर्डर से कहता हूं कि अगर तेरे साथ सारा पाताल भी आ जाए तो मेरे यीशु के लहू का एक ही कतरा काफी है। वो लहू खुदा अपने बेटे के लहू से धो करके हमें अपने लायक बना लेता है और अपने पास आने की इजाजत दे देता है। हमें जिसारत मिल जाती है उसकी हजूरी में जाने की। तौबा की हाजत नहीं रखते 99 हैं, रास्तबाज हैं, गिरजे आने वाले, लेकिन तौबा की हाजत नहीं रखते। तो एक गुनहगार जो तौबा की हाजत रखता है उसके बारे में लिखा है आसमान पर ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि तौबा करने वाले के लिए लिखा है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। एक कोरियन स्कॉलर किसी सेमिनार में खिताब कर रहे थे, कहते हैं गुनाह हमें पाताल में नहीं लेके जाता। एकदम से मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा ये क्या बात है, गुनाह अगर पाताल में नहीं लेके जाता तो फिर भाई जी ताड़ा भूखा लेके जाता है। मेरे दिल में ऐसी आया, होता है ना इंसान को आपस में अपने अंदर ही बात कर लेता है। तो मैं चौकन्ना सा हो गया। उन्होंने ये कहा कि काफी बीच में स्पेस भी ली। तो कहते हैं गुनाह हमें जहन्नम में नहीं लेके जाता, गुनाह से बाज ना आना हमें जहन्नुम में लेके जाता है। ओ कितनी बड़ी बात कर दी। यानी तौबा करना हमें
जहन्नुम से बचा लेता है। गुनाह में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें जहन्नुम में ले जाए। गुनाह को सलीब पर शिकस्त दे दी गई है, इसको कुचल दिया गया है, इसे हार मिल गई है, इसे यीशु ने सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। इसका ऐलान हो गया है कि गुनाह के शिकस्त को, कब्र को, पाताल को, इब्लीस को, नापाक कुव्वतों को शिकस्त देकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो तौबा करने वाला ये वो बड़ा मौजज़ा है जो फिर नहीं मरता। मुर्दे मर जाते हैं, मुर्दे जिंदा होंगे तो फिर मर जाएंगे। विगल स्मिथ कहते हैं उनकी जिंदगी में, उनकी मिनिस्ट्री में, माफ कीजिए, 36 मुर्दे जिंदा हुए। बड़ी बात है, लेकिन जो कलाम से भरे लोग हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। उनकी कोटेशन है, कहते हैं अगर मेरी मिनिस्ट्री में एक गुनेगार तौबा ना करे, सिर्फ एक गुनेगार मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी खिदमत में तौबा तक ना पहुंचे, तो इन 36 मुर्दों का जिंदा होना बेकार है, क्योंकि ये जिंदा हुए फिर मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई तौबा करेगा तो वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, ना खत्म होने वाली जिंदगी पाएगा। ये वो मिशन है जो यीशु ने अपनी हयात मुबारका में किया। यीशु की मुनादी थी, आसमान की बादशाही करीब आ गई है, तौबा करो, तौबा करो। यीशु की सारी मुनादी तौबा की तालीम, तौबा की मुनादी, यीशु की मुनादी, और उसके जो शागिर्द हैं वो भी तौबा की मुनादी करेंगे। मौजज़े होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, इनको नहीं कोई रोक सकेगा। लेकिन ये कैमरों के मुताज नहीं है जो खुदा के सच्चे मौजज़े हैं। जो खुदा के सच्चे मौजज़े हैं वो कैमरों के मुताज नहीं है, वो टीवी के मुताज नहीं है। अगर बड़ा मौजज़ा करना है तो फिर बाइबल सिखानी होगी, बाइबल प्रीच करनी होगी कि बड़े मौजज़े हों, कि तौबा करने वाले आपकी खिदमत में पैदा हों, आप हजारों को तौबा तक ले आएं, लाखों को तौबा तक ले आएं और ये बड़ा काम करें। खुदा आप सबको बरकत दे।